Hello, my fabulous viewers. Once again, welcome back to the singles reading. This is for the sign of Pisces from 1st to 15th of March. Remember, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. इसको मैच करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ना ही इस पर फिट होने की कोशिश करें. If you think that this message is for me, then you take that message. But before we begin, let me wish you all a very happy Holi. And tomorrow 7th March is a very important day for the sign of Pisces people, because Saturn is entering into the sign of Pisces for at least 3 to 4 years, 3.5 years approximately. So there will be a lot of changes in their lives. So let's see what's there for Pisces. Let's begin. Here I will give you your energy, your person's energy, challenge, solutions, and the long-term future. Now, this is for the sign of Pisces, my love team. So what is the message for the Pisces? This is for singles. My love team, this is for single. This is for those people who consider themselves single for whatever reason. Even if they are in a relationship or in a marriage, it may look like they still feel lonely. So this might give you certain messages. So let's start. Now this is for the sign of Pisces. What is there for the Pisces to know, love team? What is there for the Pisces to know, my love team? This is for the Pisces collective. Okay. This is you. This is your person's energy. These are the challenges. This is the solution, and this is the long-term future or the near future. And what you don't see at the bottom of the deck is the Queen of Swords in the reverse. Now Pisces, I feel this is your energy, Page of Pentacles. Now Page of Pentacles shows that you're starting your life from the scratch, and you wanting to start something new or learn something new, and you're on your own. This is a very small energy, immature energy, but you want to start your life from the scratch. आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, और आप कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, या कोई नई बिगिनिंग चाहते हैं. Now your person's energy is the strength in the reverse. You could be dealing with a Leo. Now strength in the reverse shows that आपका जो person है वो इस समय बहुत ही defeated feel कर रहा है, या बहुत अकेला feel कर रहा है, और उसको उसको लग रहा है कि they have lost you, they have failed, they have not been able to control the situation, और वो चीज़ों को सही नहीं कर पाए. तो इस समय वो इसी एनर्जी में है. Now what is the challenges? The challenges is the 7 of Pentacles in the reverse. So the challenge is कि आप लोग ने जो टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करी है वो आपको लगता है कि वो बेकार चली गई है. इट इज़ गॉन वेस्ट. सो दिस इज़ योर चैलेंज. आपको लगता है वो हमारा जो हम लोग जब साथ थे तो जो भी टाइम हमने स्पेंड किया, इट इज़ गॉन वेस्ट. सो वील क्लैरिफाई एंड सी व्हाई यू फील लाइक दिस. सो दिस इज़ योर चैलेंज. नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज़ कि यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग. आप आप दोनों अपने ऊपर फोकस करें. आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने मनी पे फोकस करें, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें, अपनी ब्यूटी पे फोकस करें. मोस्ट ऑफ ऑल यानी कि आप अपने ऊपर ही फोकस करें. यही सोल्यूशन है फ़िलहाल तो. एंड द नियर फ्यूचर इज़ द लवर्स. नाउ दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. लवर्स का मतलब नेचुरली दो लोगों के रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज रही है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ चॉइसेस, डिसीशंस. तो आने वाले टाइम में आप लोग क्या डिसाइड करते हैं, वील क्लैरिफाई एंड सी. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर द Pisces. This is for Pisces. Please clarify the Page of Pentacles energy for Pisces. Please clarify the Page of Pentacles energy for Pisces people. Okay, Pisces, your Page of Pentacles is clarified by the Three of Swords in the reverse, by the Sun in the reverse, and by the
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, एंड आपका सोल्यूशन में बी इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। नाउ दिस इज शोइंग क्लियरली पाइसेस कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, आप सही, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही सही दिशा में जा रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने मनी, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और आप इस इस अनहैप्पीनेस और इन सब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो पेन हुआ है सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ आइदर शोइंग पेन, ब्रेकअप, डिवोर्स, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप उससे निकलने की कोशिश करें, आप नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करें, आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, यू आर टेकिंग स्मॉल बेबी स्टेप्स लेकर के आप नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इस ब्रेकअप से निकलना चाहते हैं, और आप इस इंडिसाइसिवनेस से निकलना चाहते हैं या निकल चुके हैं। नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर पर्सनस एनर्जी विच इज़ द स्ट्रेंथ। सो व्हाई द स्ट्रेंथ इज़ इन द रिवर्स फॉर दिस वेरी स्ट्रॉन्ग Leo energy, Leo and Gemini. So let's clarify the strength in the reverse for the person of the Pisces, my love team. For the person of the Pisces, my love team. Okay, now the strength is clarified by the Seven of Cups in the reverse, by the Knight of Wands in the reverse, and by the Wheel of Fortune. सो या ये रिसेंटली भी हो सकता है ना। पाइसेस, आपके जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो इस कन्फ्यूजन से निकलने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि वाई दे आर फेल्ड। शायद वो आपसे पैचअप करना चाहते थे लेकिन वो पैचअप नहीं कर पाए, एंड दो देवर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, इस पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी आई हो, मौका मिला उसको चीज़ें ठीक करने के लिए, लेकिन दे फेल्ड एंड दे आर थिंकिंग कंटिन्यूसली एंड गोइंग इनसाइड, और वो अपने अंदर ये सोचने की कोशिश करें कि वाई दे आर फेल्ड। वो आपसे, ये जो आपका जो पार्टनर है, वो आपसे डेफिनेटली पैचअप कहीं ना कहीं करना चाहता था, मगर दे आर फेल्ड। सो दैट इज़ वाई दे आर थिंकिंग दैट वाई दे आर फेल्ड, व्हाट मिस्टेक्स दे आर मेड, या व्हाट कुड दे हैव डन कि ऐसा ना होता और वो आपको वापस अपने अपने रिश्ते में ला सकते होते। नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर चैलेंज विच इज़ द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। Okay, Seven of Pentacles is clarified by the Page of Pentacles, upright, by the Magician, and by the Emperor. Okay, तो यहाँ पे जो challenges दिख रहे हैं वो ये हैं कि Pisces, आप या आपके पर्सन में कोई तो you could be dealing with an Aries or जेमिनाई पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन ईयर। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और वो अपनी चलाना चाहता था, ये मेजर रीज़न दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और एक पर्सन दो वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव था। सिचुएशन वॉज बीइंग मैनिपुलेटेड, दिस सिचुएशन वॉज बीइंग मैनिपुलेटेड, एंड there was someone who wanted to take control of the situation all the time, and they thought that जो अभी था कि छोटे से लेवल पर आपके पार्टनर शायद शुरुआत करना चाहते थे, बट दे हैव फेल्ड बिकॉज somebody was very very dominating, controlling, cold, अपनी चलाना चाहते थे, मैनिपुलेट करते थे, बहुत स्मार्टनेस दिखाते थे, जिसके कारण ये रिश्ता जो है वीक होता चला गया और ख़त्म हो गया। और दूसरा पर्सन ये भी उसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा क्लिंगी, तो चिपकने वाली एनर्जी होती है, काइंड ऑफ थिंग। सो दैट्स वाई योर रिलेशनशिप फेल, बिकॉज वन पर्सन वॉज वेरी वेरी कंट्रोलिंग योर। नाउ लेट्स क्लैरिफाई, वो अपनी चलाना चाहते थे, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता था और रिलेशनशिप वीक चली गई। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल विच इज़ द सोल्यूशन। Solution is very easy. Let's see what's there for the solution. Your Queen of Pentacles is clarified by the Eight of Pentacles in the reverse, by the Three of Pentacles in the reverse, and by the Eight of Swords. ये आप लोग का सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन ये है पाइसेस कि आप नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलें, और आपने जो एक माइंडसेट बना रखा था कि मुझे चीज़ें ऐसे ही करनी है और ऐसे ही होती हैं, या आपका एक अपना थिंकिंग पैटर्न था, तो उससे निकलने की कोशिश करें
और उस पर वर्क करें कि आप अपने माइंडसेट, अपने पर्सपेक्टिव को बदलें, अपने व्यूज़ को बदलें, और बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, एंड देन थिंग्स विल बी ऑल राइट। एंड ये अगर आप ऐसा करेंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप रिश्ते को बैलेंस में ले आएंगे, तो सॉरी, आप अपने आप को जब बैलेंस में ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली रिश्ता भी बैलेंस में आ सकता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग। आपका रिश्ता बाहरी लोगों से भी बैलेंस में आ सकता है। दिस इज़ व्हाट इज शोइंग मी। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द फार फ्यूचर विच इज़ द लवर्स। व्हाई द लवर्स हियर, द Pisces? Making a choice in love. Okay, the lovers are clarified by the Seven of Swords in the reverse, by the Ten of Cups in the reverse, and by the Two of Pentacles in the reverse. या आने वाले टाइम में Pisces आप कोई ना कोई चॉइस आप इस रिश्ते में चूज़ कर लेंगे कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके पास दो रास्ते हैं। मतलब या तो फिर you will focus on your family or on yourself, you will choose this person or yourself, एंड या फिर अगर हो सकता है कि दूसरी बात है कि अगर आपके सामने आपकी पर्सन ने कुछ चीटिंग करी हो या आपने करी हो, अगर वो सामने आ जाती है, तो देन यू विल मेक अ डिसीजन टू focus on your happiness and leave this person. So you have to make a choice. You will be making a choice in the near future, depending on the एविडेंसेस। मतलब अगर आपके सामने कुछ ऐसे सबूत आते, कुछ ऐसी बातें आती हैं जिससे आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा कि वेदर हो सकता है आपका पार्टनर पैचअप करना चाहता हो, लेकिन अगर आपको लगेगा कि आपके सामने ऐसे प्रूव्स हैं कि चीटिंग हुई है या कुछ बातें पता चली हैं, देन नेचुरली you are going to leave that person and choose your happiness and if you are married, then your marriage or whatever it is. And agar मतलब you will be making a choice, a very tough choice कि what you have to do in the coming times. So yeah, you will be moving on. You will be moving on and you will be making a choice in love. This is what I have for you, Pisces. Hope you like the reading, and please hit the like button if you like the reading, if you get some message, if you get something out of this reading. And till next time, see you. Bye bye.